So good morning, everyone. I hope you all have revised your work, which we have done till now of this chapter 10. You have revised the theorems, the results you have learned. And now we are going to start second question of exercise 10.4. Yesterday also, while leaving the class, I explained this question and I told you that you have to try to do this question. But those who have done, it's excellent. And for those who have not done, they please see here. The question was, if you have equal chords of a circle, chords are equal, and you have to, and the chords are intersecting inside the circle, then we have to show that the segments of the chord, they will be equal. You have two chords, AB and the chord CD. They are equal to each other. This is what we have written, that we are given a circle with center O. Chord AB is equal to chord CD. After that, they are intersecting within the circle. So we have taken the point of intersection as X, right? And then what we have to prove the segments of the chord. आपको कल भी बताया था, यहाँ पर segment का मतलब आपने circle का segment नहीं लेना है. Segment of the chord means the parts of the chord in which it is divided. AB is divided into two parts, AX and BX. And CD is divided into two parts, CX and DX. और आपको देख के पता चल रहा होगा कि आपने किसको किसके इक्वल प्रूव करना है. इसका ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना है. You have to show that AX is equal to DX and CX और BX. ये दोनों आपके इक्वल हैं, ये आपने प्रूव करने हैं. So we are saying that we are doing the construction here. कंस्ट्रक्शन क्योंकि हमें पता है कि कोड्स इक्वल है, तो उसका रिजल्ट हमने यूज करना है. एंड वी नो दैट द इक्वल कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अगर कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा. सो वी हैव टेकन द सेंटर O. यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि कोड्स इक्वल हैं. सो दीज परपेंडिकुलर्स दे विल बी इक्वल. वी कैन से दैट OM is equal to ON, right? Now also we have joined the point O to the point of intersection X, right? Now let me prove the congruency of these two triangles. Proof शुरू कर रहे हैं. In triangle OMX and triangle ONX. हाँ जी, कैसे की है congruency बता दो. OM is equal to ON. OM RHS. is equal to ON. Reason लिखेंगे इसका. OX is equal to OX. Angle M is equal to angle N. Equal chords are equidistant from the center. Yeah, equal chords are at equal distance from the center. This is the reason. OX कॉमन ले लेंगे. OX common. बिल्कुल. OX is equal to OX. This is common. What is the third one? Angle M is equal to angle. Angle M is equal Angle M is equal to angle N and 90 degrees. yes. So the triangle. RHS. Okay. OMX congruent triangle ONX by RHS congruency. And if they are congruent, means we can say that MX is equal to, क्या लिखूं? NX. Yes, MX is equal to NX by CT. ठीक है, ये आपने ले ली नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, उसके बाद आप लिख रहे हैं कि आपके कोड्स इक्वल हैं. पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज कर रही हूँ. हम ले लिया. ओके, चले. नाउ यू आर सेइंग दैट द कोड्स आर इक्वल. हमारी कोड्स अगर इक्वल हैं तो sorry, you are given that AB is equal to CD. It is given. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. हाफ ऑफ AB is equal to half of CD. और जब भी हम परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है. दैट मींस AN is equal to BM, राइट? एंड CN is equal to DN. ये हाफ हाफ है. ये भी CD का हाफ है, ये भी CD का हाफ है, ये भी AB का हाफ है, ये भी AB का हाफ है.
तो एक बार मैं ए बी के हाफ को एम लिखती हूँ, दूसरी बार मैं ए बी के हाफ को बी एम लिख रही हूँ। मैं दो स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ यहाँ से। हाफ ऑफ ए बी हम कह सकते हैं कि ये ए एम है। एक बार अगर आप इधर वाला ले रहे हो ट्राइंगल के इधर वाला, तो इधर भी ट्राइंगल के इधर वाला। सी डी का हाफ क्या है? डी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी मीन्स डी एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड यहीं से ही आप लिख रहे हो हाफ ऑफ ए बी, ए एम की जगह हम बी एम भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। जैसे आपने डी एन लिखा वैसे आप लिख सकते हो सी एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपने इन 3 इक्वेशन से अपने रिजल्ट तक पहुंचना है। मैम पिक्चर हाँ जी, पिक्चर मेरी तरफ से तो बिल्कुल ओके है। हाँ जी, 2 और 3 को 1 और 2 को ऐड कर दो, 2 + 1। ठीक है, am plus mx, you will get am plus mx is equal to dn plus nx, dn plus nx। am plus mx क्या बन गया आपका? am plus mx कितना हो गया? ax equal to ax and dn plus nx is dx। dx। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया दैट ax is equal to dx। बड़े वाले सेगमेंट्स तो इक्वल हो गए। नाउ वी हैव टू शो द स्मॉलर सेगमेंट्स आल्सो। स्मॉलर सेगमेंट्स के लिए हमारे पास अब हमें दूसरी स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा। bm, मुझे bm की जगह bx चाहिए, दैट मींस मुझे mx को माइनस करना है। mx को माइनस करना है bm में से। सो व्हाट विल आई डू? इक्वेशन 3 में से फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस करेंगे। यू विल राइट bm minus mx is equal to cn minus nx, राइट? अब bm minus mx आपका क्या बन गया? फिगर में से देख के बताओ। bx This will be bx and cn minus nx will be cx। ठीक है, hence proved। यही दो रिजल्ट्स आपने प्रूव करने थे। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? स्क्रीन इज क्लियर फ्रॉम माय साइड? किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है बेटा? क्लियर है। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, फिर वही बात है, दो कोड्स इक्वल हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर, जैसे आपने ये वाला डायग्राम बनाया। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स। जो आपकी लाइन है सेंटर से जो आपने ज्वाइन की थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ, यू हैव टू शो दैट दैट लाइन इज प्रूव हो जाएगा। सीपी अगर हम कर देंगे तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कर देंगे उसमें सीपी से प्रूव हो जाएगा। वेरी राइट। फिर से आपकी सेम फिगर ड्रॉ होगी दैट यू हैव टू इक्वल कोड्स। दिस इज पॉइंट O AB and this is CD. Let point of intersection is X. We are joining O to X. We have to show that this line joining the center to the point of intersection, it makes equal angle with the chords. Chords के साथ equal angle बनाने का मतलब है हमने इसके perpendicular के साथ equal angle prove करना है। ये वाला एंगल हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स का मतलब यही है कि आपने ये नहीं, सॉरी, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है कि आपने जो ये लाइन ड्रॉ करी है ना, देखो सेंटर से आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया, ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड के साथ और इस कॉर्ड के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज सेम। दैट मींस वी हैव टू शो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर, मैम पिछले वाली कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएगा। किससे? मैम पिछले क्वेश्चन में जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव उसी से ही हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूव करोगे और सीपीसीटी से अब आप पहले आपने ये दो इक्वल बोले थे, अब आप कह दोगे कि 1 इज इक्वल टू 2 है। हो जाएगा? यस मैम, हो जाएगा। यस मैम।
चलिए ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम सिमिलर, वहीं तक कंस्ट्रक्शन भी एज इट इज लिखनी है, और बस इसमें आपका टू प्रूव चेंज हो जाएगा। टू प्रूव में आपने पहले लिखा था बिल्कुल, डबिंग हो रही है। यस मैम, आपकी आवाज दोबारा आ रही है। टू प्रूफ हु इज डूइंग दिस? स्पीकर ऑन किया है किसी ने अपना? खुशी। चलिए इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ अपना टू प्रूफ चेंज करना है, दैट यू विल राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, प्रूफ जब आप करेंगे बिल्कुल वही सिमिलैरिटी एज इट इज पिछले क्वेश्चन वाली प्रूव करेंगे, और उसमें आप सिर्फ लास्ट में लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP CT। ठीक है, सो दिस वे द क्वेश्चन विल बी completed. Now the next question. If a line intersects two concentric circles with the center O at A, B, C, and D, prove that AB is equal to CD. You are given two concentric circles. Concentric means, what is the meaning of concentric? A circle within a circle. Circle with the The common same Same center. center. With same center. Circles with the same center are called concentric circles. So they are saying two concentric circles are there with the center O, and there is a line which is intersecting the two circles. दोनों circles को intersect कर रही है, and the points are A, B, C, and D. We have to show that AB is equal to CD. एक line है जो cut कर रही है, so we will draw the line. This is the center O. You have to show that AB is equal to CD. तो given में तो आप लिख देंगे, you are given not a circle, you are given two concentric circles with center O. हम कंसेंट्रिक सर्कल्स एक और बार बता दो। Concentric circles means आपके पास जो circles होंगे उनका center same होगा. You are keeping your compass at this point. एक बार आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया, 5 का ड्रॉ कर दिया, 6 का ड्रॉ कर दिया, बट योर कंपास इज एट द सेम पॉइंट। ठीक है, वो आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जब आपका सेंटर बिल्कुल सेम होता है। नाउ यू आर गिवन अ लाइन, इस लाइन को नाम दे देते हैं L, इंटरसेक्टिंग, क्या लिख रही हूँ, SEC, intersecting circles at A, B, C and D. ठीक है, to prove में, what is to prove? That AB is equal to CD. We have to show this. Proof कर लेते हैं। हाँ जी, बताओ प्रूफ में क्या करें? मैम पहले कंस्ट्रक्शन आएगी। Yes, first of all we have to draw the construction. देखो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ से हमें थोड़ा सा तो आइडिया है कि हमारा एक ही रिजल्ट यूज हो रहा है, that when we draw the perpendicular from the center to the chord, it bisects the chord. ठीक है, जब भी आप सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो इस कोड को बाइसेक्ट कर देगा. लेट दिस पॉइंट इज M. अगर ये नाउ MBC आपकी कॉर्ड है, M इसका क्या हो गया? अगर ये परपेंडिकुलर है तो M इज द, BC का क्या है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बिकॉज इट इज बाइसेक्टिंग BC. बाइसेक्टर. बिल्कुल ठीक है. सो वी कैन से दैट DM इज इक्वल टू MC. ठीक है, बट ये परपेंडिकुलर अगर BC के ऊपर है तो ये AD के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर है. ठीक है, DM. so we can write that AM is equal to DM. ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. आपको सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, सो यू सबट्रैक्ट द टू इक्वेशंस. यस, AM में से BM को माइनस कर दो, इसमें से इतना पार्ट कट कर दिया, यू विल गेट CMC. इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो इस पूरे में से आपने ये माइनस कर दिया, यू विल गेट CD. ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. उमंग कब से काव्य बन गया है?
उमंग आप एलकेजी में कब से पहुंच गए? अरे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AD, ठीक है, प्रूव करते हैं। As we know that the perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. So we can say that पहले A वाली लिख लो, AM is equal to DM and DM is equal to CM, equation number 1, and this is 2, और 1 में से कर दिया आपने 2 को माइनस, you will get AM minus BM is equal to DM minus CM. Yes, and now AM minus BM is AB and DM minus CM is CD, hence proved. Screenshot if you have to, and if you want to do it yourself, nothing can be better than this. उमंग आप शुरू से इसी नाम से एंटर हुए थे या आपने बीच में चेंज किया? मैम शुरू से ही हो गया, कल कर रहा था अच्छा। चेंज करना। That means some of the students, they are not studying, they are keep watching here and there कि किसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैम आपको किसने बताया? Why should I tell you? बता दो एक बार। No, मैम no. क्या? मैम बता दो। मैम बाद क्या में कह रहे? बताऊंगी, बाद में बताऊंगी बाद में। मैम क्या कह रहे हो मुझे बता दो, मुझे बस दे दो। कुछ नहीं कह रही, चलो come to the question. Next question is okay, important question. The उमंग की question बात is 3 girls, fifth question is there, 3 girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. They are saying park के अंदर एक circle draw किया हुआ है और उस circle की जो radius है that is 5 meter. The 3 girls are there, Reshma, Salma and Mandeep. ठीक है, इसकी बाउंड्री पर वो बैठे हुए हैं एंड रेशमा अपनी बॉल जो है वो सलमा को फेंकती है, सलमा बॉल फेंकती है मनदीप को और मनदीप जो है वो बॉल देती है रेशमा को, ठीक है। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। We have to find the distance between Mandeep and Reshma. ठीक है, आपने ये फाइंड आउट करना है RM की वैल्यू। Now we are मैम taking इसमें a circle. थ्योरम लगेगी? हाँ जी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी? हाँ लगेगी तो सही। √72। कैसे, वो भी तो बता दो, सिर्फ आंसर थोड़ा बताना है। मैम पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो √72 ही तो आ जाएगा RM। किसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो बेटा? ट्रायंगल में RM के डिस्टेंस नहीं, में। RSM में ये राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है जिसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगे। नहीं, ये राइट ट्रायंगल नहीं है। राइट ट्रायंगल ये तब होता, राइट ट्रायंगल ये तब होता जब हमारा ये डायामीटर बनता, ठीक है। अगर ये RM यहाँ ना होके डायामीटर बनता तो हम कह सकते थे कि हमारा एंगल 90 डिग्री है, बट वी कैन नॉट से इन दिस केस, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जॉइनिंग O to R, O to M। OR कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर्स है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? 5 मीटर। ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है। 5 मीटर। यहां से कर दिया इसको इससे ज्वाइन।
बोलो, इसका एरिया निकाल दो, एरिया ही एरिया निकालेंगे, निकाल दो। बिल्कुल एरिया निकालेंगे, क्यों निकाल, किसका एरिया निकाले एंगल्स का हैं? बीच वाली साइड तो कॉमन है ना, बीच, या फिर हम इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। किसकी? लेट दिस पॉइंट इज P। हाँ जी बताओ अब। हम इसकी वजह से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। मैम हमारा ओपी की बिल्कुल वैल्यू कर तो सकते 5 हो। होगी, सॉरी क्या? ओएस की वैल्यू 5 होगी। OS की वैल्यू भी 5 होगी, बिल्कुल ठीक है। मैम तो हमने ओपी उसका हाफ होगा। OP नहीं, ये तो 2.5 कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो उसका हाफ होगा। मैम ये तो तो हम बाई, लोग ORS ट्रायंगल को उसका एरिया निकाल लेते हैं। first of all, yes, right. First of all, we will find out the area of triangle ORS. ये हमारे पास अगर ये पॉइंट P है, मैं इसको अगर अंदर की तरफ लिख दूं तो ये भी मेरे पास 5 मीटर है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द रेडियस। ये रेडियस है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं किससे? पाइथागोरस थ्योरम से, सॉरी हेरोल्स फार्मूला से। जल्दी से बताओ कितना आएगा। First of all, we will find out the value of S. मैम 8 सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। 124 आएगा। 124 आंसर आ जाएगा एरिया। एरिया निकाल दिया? यस मैम। एरिया 12 आएगा। 8 माइनस 5, 8 माइनस, चलो देखते हैं, 8 माइनस 6, ये हो गया आपका। 24 नहीं आएगा, 12 हाँ आएगा। निकाल लिया, 12 आएगा। ओके, मैम वो निकाल दो ना, इसकी हाइट निकाल दो, इजी है निकालनी। कैसे? मैम 3 हो जाएंगी, जैसे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मिड पॉइंट 3 हो जाएंगे, राइट एंगल बनेगा तो 5 4 3 वाले से हो बिल्कुल जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे? उससे भी कह सकते हो। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर होगा वो इसे बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। बाइसेक्ट करेगा तो ये आपकी इधर भी 3 और इधर भी 3, बीच वाली आपकी पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ जाएगी। फिर आपने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू 6 कर दिया, तो वहां से भी आपका आ जाएगा। मेरी क्लास है स्कूल में। चलिए, यहाँ से भी आपका आ गया 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? चलिए, वी आर सेइंग, अब एक बार लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। वी आर सेइंग कि हमने इस ट्रायंगल का एरिया ORS निकाल लिया 12 मीटर स्क्वायर, और इसी ट्रायंगल का एरिया, मैं एक बार दोबारा फॉर्मूला लगा रही हूँ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर आई एम टेकिंग दिस एज द बेस, और इसको हाइट ले रही हूँ। क्यों हाइट ले रही हूँ? ये 90 डिग्री कहाँ से हो गया? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नहीं है, गिवन ही नहीं है। अब हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना ओपी एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे एंगल 90 होगा। we have just joined the point O to S। अब हमें ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बंद करके तो कल हो जाएगा बुधवार। अच्छा चलिए, थोड़ी देर तक चले ना। Umang, please mute yourself. Okay, so यहाँ पर हम कह रहे हैं, can I say that this is the shape of a kite, this quadrilateral? क्या ये क्वाड्रिलेटरल काइट शेप है? ऊपर वाली दो साइड्स 5, नीचे वाली दो साइड्स 6। काइट है। काइट है, और अगर ये काइट है तो इसकी ये डायगोनल्स है। काइट की डायगोनल्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ऑलवेज 90 डिग्री। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर 90 डिग्री होता है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ठीक है। तो आपने लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर मीन्स हाइट, 1/2 इंटू 5 इंटू x, राइट।
अब ये दोनों वीडियो एरियाज हैं, दैट इम्प्लाइज दोनों एरियाज आपस में इक्वल हो जाएंगे. वी कैन से दैट 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 इंटू 2 अपॉन 5. ठीक है, दैट मीन्स 24 अपॉन 5 और ये आपका कितना आ गया 4.8. ये तो आई है हमारे पास इस x की वैल्यू. ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इस कोड को बाइसेक्ट भी कर रहा है. ठीक है, दैट मीन्स इफ दिस इज x दिस विल आल्सो बी x. ठीक है, सो वी कैन से दैट rm is equal to RM is equal to 2 into 4.8. 2 into 4.8 that is 9.6 मीटर. 9.6. ठीक है, अब आपने ये जो x यूज कर लिया इसको आप मेंशन भी करोगे. ठीक है, इसको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख लो as ORSM is a kite. So OS and RM are perpendicular to each other. ठीक है, ये हो गया. और उसके बाद आपने ये सारा कर दिया, वहां से क्लियर हो गया कि ये एंगल 90 डिग्री है. फिर उसके बाद आपने इसको x लिखा, इसको भी x लिखा है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो रीजन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा. चलिए, क्वेश्चन है, हो गया. क्या मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं? कल करवा देना. ओके, अगला कल करवा देंगे. ये वाला वैसे क्लास में भी जब क्लास लेते हैं ना तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे पास इकट्ठे होते नहीं है एक ही क्लास में. एंड यू ऑल आर good listener that you all have done these much questions in a single class. मैम अब तो बता दो, आज तो आपकी क्लास है. Yes, I School have में. the class. Yes, I have the class today.